بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس اسٹارٹ کرنے سے پہلے آج ہمیں فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے ہیں۔ جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں مدد ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے پہلی کلاس میں دیکھا تھا کہ قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے، تلاوت کرنے والوں کے لیے، چاہے وہ سمجھ کر پڑھے یا نہ سمجھ کر پڑھے، ان کے لیے کیا ہے، ایک ایک حرف کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ تو جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے دگنا ثواب ہے، یعنی کہ دگنا اجر ہے۔ مطلب جو ہم لوگ پڑھتے ہیں ان کے لیے 10 ہیں، تو جو اٹک اٹک کر مشقت کر کے پڑھتے ہیں انہیں 20 گنا اجر ہے، یعنی کہ 10 کا 2 گنا 20 ہوا۔ اور معلوم ہے یہ مشقت کیا ہے، جو ہم مخارج کے لیے، مطلب سیکھنے کے بعد تو ہم لوگ مخارج آرام سے نکال سکتے ہیں، لیکن جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں مخارج کے لیے تھوڑی دقت ہوتی ہے۔ اس مشکل کے لیے، اس مشقت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دگنا اجر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ہر ایک نیک کام کے لیے اجر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارے 10 تختیاں مکمل ہو چکے ہیں اور آج ہماری 11ویں تختی ہے، تختی نمبر 11، جزم۔ جزم اس طرح کا ہوتا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس طرح کا جو نشان ہوتا ہے اس کو جزم کہتے ہیں، چھوٹی دال کی شکل کا ہوتا ہے، اور اس کو سکون بھی کہتے ہیں۔ اور جس حرف پر سکون یعنی کہ جزم ہو تو اس حرف کو کیا کہتے ہیں، ساکن کہتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکنہ کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی حرف کے اوپر جزم ہو تو اس کو ساکن کہتے ہیں، اور اس کا پڑھنے کا طریقہ اس طرح ہوگا کہ جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو الحمدللہ اب تک ہمیں معلوم ہو گیا کہ عربک میں صرف حرف سے کچھ نہیں ہوتا، حرف کے ساتھ حرکت ہونا بہت ضروری ہے۔ حرکت کو انگلش میں سائن کہتے ہیں۔ اسی طرح نو سائن نو ساؤنڈ، جس پر حرکت نہیں ہوگی تو اس کی آواز بھی نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح جس پر جزم ہوگا اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر آج ہمیں سکون کا سبق پڑھنا ہے، اور اس میں اسپیشلی قلقلے کا۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، تا، با، جیم، دال، اور اس کا مجموعہ ہے کتب جدن۔ جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج چکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا۔ تو الحمدللہ یہ 5 حروف ہیں، قاف، تا، با، جیم، دال۔ تو جب بھی ان پر سکون ہوگا، جزم ہوگا، تو اس وقت کیا ہے، اس کے مخرج چکر کھا کر الگ ہو جائیں گے۔ جیسا کہ اب، حج، عد، احد، جیسے کہ قل هو اللہ احد، اس طرح احد دال کو پکڑ کر نہیں رکھیں گے بلکہ احد، اس طرح اس کے مخرج چکر کھا کر الگ ہو جائیں گے۔ پھر اس کا قاعدہ اسی وقت اپلائی ہوگا ان 5 حروف پر جب ان پر جزم ہوگا، اور دوسرے حروف کے اوپر جب جزم ہوگا تو اس طرح کا قلقلہ نہیں ہوگا۔
इसकी हम मट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बा के ऊपर क्या है, जज़म है। ये बा के ऊपर जज़म है। तो बा क्या है, हुर्फ कलकला में से है। तो जब जज़म वाले हर्फ को हम पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, जब हम जज़म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे और जब वो हुर्फ कलकला हो, कलकला में से हो, तो उसके मकर्रर चक्कर खाकर अलग हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर अलिफ की शक्ल में हमजा है ये, क्योंकि अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। तो इस पर जबर है, हमजा जबर, हमजा बा जबर अब, इब, उब, जब, जिब, जुब, बज, बिज, बुज, सद, सिद, सुद, हत, खित, खुत, जक, जिक, जुक। तो ये तमाम हरूफ क्या है, दा वाले हैं। खौफ, ता, बा, जीम, दाल। तो ये इम्तिहान है। इसमें हमें जहाँ कलकले वाला हुर्फ आया हो वहीं पर हम कलकला करेंगे। अगर कलकले वाला हुर्फ ना हो तो कलकला नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी कलकले वाला हुर्फ नहीं है। तो इसको हम आसानी से पढ़ लेंगे। जैसे कि बा, सीन, जबर, बस, कित, जे, जुल, गुल, वक्त, मख। मख को थोड़ा झटके से पढ़ेंगे, हमजा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। इस, नौफ, रौफ, इस तरह से ये कोई भी कलकले वाला हुरूफ नहीं है। तो इसको हम नॉर्मली अदा करेंगे। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हुरूफ कलकला पर सिर्फ जब भी जज़म हो तब ही हम कलकला करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जीम आया हुआ है। यहाँ पर जीम आया हुआ है और जीम पर जज़म है, तो इसीलिए इस पर कलकला करेंगे। लेकिन यहाँ पर खौफ है, लेकिन खौफ के ऊपर जज़म नहीं है। लेकिन दाल है, दाल हुर्फ कलकला में से है, इस पर जज़म है तो कलकला करेंगे। इसी तरह इस खौफ पर हम इस खौफ पर हम कलकला नहीं करेंगे क्योंकि जज़म नहीं है। लेकिन इस खौफ पर हम कलकला करेंगे क्योंकि इस खौफ पर जज़म की निशानी है। और यहाँ पर सौ के ऊपर भी जज़म है, तो यहाँ पर भी हम कलकला करेंगे। यहाँ पर खौफ पर जज़म है तो यहाँ पर भी हम कलकला करेंगे। और जीम, जीम पर भी यहाँ पर जज़म है तो इस पर भी कलकला होगा। और यहाँ पर सौ पर भी जज़म है तो यहाँ पर भी कलकला होगा। यहाँ पर दाल होकर कलकला में से है, लेकिन इस पर क्या है, जेर आई हुई है, तो इस पर कलकला नहीं होगा। अगर इस पर जज़म होता तो उस वक्त कलकला होगा। तो एक बार हम इसकी मश्क कर लेते हैं। यजअल, लक़द, खलक़ना, अतअमना, नक़अन, बुरूज, बुरूज। इसका मकरर चक्कर खाकर अलग होना चाहिए। मुहीत, मुहीत, इहदीना, इहदीना। इस तरह से जहाँ कलकला हो, जहाँ होते कलकला भी हो और उसके साथ जज़म भी हो, तभी उस पर कलकला होगा, वरना कलकला नहीं होगा। और ये है तख्ती नंबर 12। तख्ती नंबर 12 में भी हम लोग देख सकते हैं, इसमें भी ज्यादा से ज्यादा सुकून और जज़म का सबक आया हुआ है। तो तख्ती नंबर 12 मश्क, सुकून, जज़म।
जिस हर्फ पर जज़म हो उसको पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम सिस्टर्स जानते हैं कि जिस हर्फ पर जज़म हो उसको पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जज़म वाले हर्फ को क्या कहते हैं? साकिन कहते हैं। और हमजा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। हमजा साकिना उस हमजा को कहेंगे जिस हमजा पर जज़म हो। तो हमजा साकिना पढ़ने का तरीका ये है कि हमजा साकिना को पढ़ते हुए हमें थोड़ा सा झटका देना है। तो यहाँ पर हमारी मशक होगी कि किस तरह से हमें जज़म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ना है, और जहाँ भी कलकले वाला हर्फ आया हुआ हो उसके साथ जज़म हो तो हम कलकला करेंगे। तजरी, तक़वा, युगनी, युगनी। यहाँ पर गैन जो है हुर्फ़े कलकला में से नहीं है, गैन हुर्फ़े कलकला में से नहीं है, तो यहाँ पर हम कलकला नहीं करेंगे। नुसीरत, नुसीरत, रुफ़िअत, यहाँ पर भी कलकला नहीं होगा। या क़ालिब, या क़ालिब, यहाँ पर हुर्फ़े कलकला के हुर्फ़े इक्फा के बाद जो है नूने सकीन आया हुआ है, तो हमें यहाँ पर इक्फा करना है। तो आप भी ख्याल रखें कि जो जो कायदे हम सीखते जा रहे हैं उसको हमें तिलावत के दौरान अप्लाई करना है। लईसा, हुशीरत, हुशीरत, यालमु, यालमु, फुतिहत। यहाँ पर क़ा आया हुआ है हुर्फ़े कलकला में से, लेकिन इस पर जज़म नहीं है, तो इसलिए कलकला नहीं होगा। युवस्तिसु, युवस्तिसु, युस्क़ौना, युस्क़ौना। यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं क़ाफ आया हुआ है लेकिन इस पर जज़म नहीं है, तो कलकला नहीं होगा। वअल्क़त, वअल्क़त, अफ़ला यअलमु, अफ़ला यअलमु, इज़ा बुअ्थिर, इज़ा बुअ्थिर। इस तरह से हम देखकर मश करेंगे। जहाँ पर हुर्फ़े कलकला हो वहाँ पर कलकला करेंगे और जहाँ नहीं है वहाँ पर नहीं करेंगे। वअल्क़त, अफ़ला यअलमु, इज़ा बुअ्थिर, फ़अल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा। यहाँ पर क़ाफ के ऊपर सिर्फ जज़म आया हुआ है हुर्फ़े कलकला में से, तो इसलिए इस पर तक़वा इसी तरह कलकला करेंगे। अलम नशरह, अलम नशरह लक सदरक, लक सदरक। दाल के ऊपर हुर्फ़े कलकला में से है दाल और उस पर जज़म आया हुआ है, तो यहाँ पर हम कलकला करेंगे और स्वाद को मोटा करेंगे। सदरक, हल अताका, हल अताका। यहाँ पर खड़ा जबर आया हुआ है, तो खड़ा जबर कायम मकाम है अलिफ मद्दा का, तो इसको हम 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे, 2 हरकत से पढ़ेंगे। अताका फलहुम अजरुन। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जीम हुर्फ़े कलकला में से है और इस पर जज़म आया हुआ है, तो इसलिए जीम पर हम कलकला करेंगे। और तनवीन के बाद हर हल्की आया हुआ है, तो यहाँ पर इजहार करते हुए आगे बढ़ेंगे। अजरुन गैरु ममनूनिन, अजरुन गैरु ममनूनिन, इक़रा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अलीफ की शक्ल में हमजा आया हुआ है, क्योंकि अलीफ हमेशा खाली होता है, जो अलीफ खाली ना हो वो हमजा है। तो हमजा साकिना को पढ़ने का तरीका ये है कि हमजा साकिना को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे और उसमें थोड़ा सा झटका होगा। इक़रा तख्तून, तख्तून, यहतीका, यहतीका, यहतीका।
यहमुरून, यहमुरून, इस तरह से। वअल्क़त अफला यअलमु इज़ा बुशिर फअल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा अलम नशरह लक सदरक हल अताक फलहुम अजरुन गैरु ममनून इक़रा तहसून यहतीक यहमुरून। इस तरह से हम संभल कर पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की मैथ कंप्लीट हुई।